Good morning students. Today is 27th April and this is maths lecture for class 10th students. We are going to deliver 16th lecture on topic real numbers. Students, in the last lecture I have given you some homework from question number 38 to question number 59, and in that homework we have three types of problems you have to solve there actually. One is based on HCF and LCM, another is based on divisibility, and the third one is based on remainder. So today we will discuss problems based on HCF and LCM, what I have assigned already to you for your homework. I hope you have attempted that. So I will discuss some questions from question number 38 to question number 43 today. Okay, questions I have already uploaded on Classroom app. So now let's start discussion with question number 38. See, your question is HCF of 3240, 3600 and the third number is 36, and their LCM is 2 power 4 into 3 power 5 into 5 square into 7 square. Then we have to find the third number. So see, basically in this question your one number is 3240, your another number is 3600, and you have to find a third number. Actually we have three numbers here, and for these three numbers here HCF is 36 and LCM is this figure. So we have to find the third number. So what we should do, actually we should write this 3240 in terms of prime factors. So when you will try to write this as this is a 3240, you will get like this. Okay, now we should divide by 3. 5 plus 4 9. Okay, then again, then and then like this. So what we can write here, 3240 as 2 cube into 3 power 4 into 5. So 2 cube into 3 power 4 into 5 power 1. Similarly this 3600, we can write 3600 here as at first we write it as 36 into 100 and 36 as 6 square. So 2 into 3 square, and we will write 100 as 25 into 4. So this is like 2 square into 3 square into 5 square into 2 square. Finally we will club power of 2. 2 power 4 into 3 square into 5 square. So actually 3600 is this and 3240 is this, and we have to find the third number. Now HCF is 36. So HCF is 36. What we can write HCF 36? 6 square, that is 2 square into 3 square, and your LCM is given here as 2 power 4 into 3 power 5 into 5 square into 7 square. So now we will try to write our third number x. See, HCF is 2 square into 3 square. We know to write HCF we have to write primes with minimum powers of the given numbers. So in 3240, 2 is in the form of 2 power 3 here, 2 power 3, in 3600 2 power 4, but our HCF is 2 square, so which gives us hints that for prime 2 we should write 2 square here. Okay, it should be clear, because 2 cube in 3240 we have, and in 3600 we have 2 power 4, and HCF is 36 where 2 is in the format of 2 square, so we should consider 2 square here. Okay, now see for next prime 3. In 3240 we have 3 power 4, in 3600 we have 3 square. So already we have 3 square which is available in 3 square in HCF format. Okay, so leave this. Power of 3 maybe 3 square, exponent of 3 maybe 2 or more than 2, basically we can say. So just leave it for the time being. Now see in LCM. In LCM we can see exponent of 3 is 5 here, while in 3240 exponent of 3 is 4, and in 3600 exponent of 3 is 2. So to have LCM, in LCM 3 power 5, we should have x, in x 3 power 5, only then you will get LCM as 3 power 5. Again you can compare for 5. Our LCM is 5 square, but in HCF we are not having 5.
and in 3240 what we are having here, this is in 2 cube into 3 power 4 into 5 into 1 we can say. So in HCF we have 5 here in 3240, and in 3600 we have 5 square. So already we are having 5 square here, but in HCF we are not having 5, so it should be 5 power 0. Is it clear? Now see, in LCM we have a term 7 square, while in 3240 we are not having any term having 7. In 3600 also 7 is not here, so in X there should be 7 square. So in this way we can write our X as 2 square and 3 power 5, this is 2 square into 3 power 5 into 1 into 7 square. So actually this X is 2 square into 3 power 5 into 7 square. Okay, so your correct answer should be choice A. I hope problem is clear to you. Okay, now we'll discuss question number 39. See, your question is the number of ordered pairs A comma B of positive integers such that A plus B equals to 90 and their greatest common divisor is 6 equals. देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, we have to find number of ordered pairs. ये ordered pairs क्या होता है A comma B? तो देखो जब हम लोग दो एलिमेंट्स को इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर A comma B, तो इसकी फर्स्ट एंट्री है और सेकेंड एंट्री भी है. अभी तो बस तुम इतना समझो. तो ये ऑर्डर्ड पेयर A comma B है. If you will change this, if you will consider B as the first entry and A as the second entry, you will get another ordered pair. The meaning is ordered pair. Ordered pair means what is your first entry and what is your second entry. So A comma B is ordered pair and B comma A is another ordered pair. We cannot consider A comma B and B comma A as same ordered pair because in B comma A B क्या है, हमारा फर्स्ट एंट्री है और A सेकेंड एंट्री है. Similarly here A is first entry and B is second entry. So A comma B and B comma A डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स, ये दोनों अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्स हैं. ओके, तो हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बताना है और पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर सच दैट A प्लस बी 90 होना चाहिए और उसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है GCD वो 6 आना चाहिए. तो इसको अगर प्राइम फैक्टर में लिखो तो ये कुछ 2 into 3 आता है. ठीक है, अब देखो A प्लस बी तो 90 है और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 6 आना चाहिए. मतलब अगर हम A को 6 टाइम्स K1 मान लें, वेयर K1 कुछ अनदर नंबर 6 इंटू K1 एंड B को 6 इंटू K2 मान लें, क्योंकि 6 कॉमन आएगा तभी तो GCD हमारा 6 बनेगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 6 बनेगा. ओके, तो तुम यहाँ पर ये देखो ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है, इसको हम HCF भी समझ सकते हैं, सेम मीनिंग है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो A इक्वल्स टू 6 K1 एंड B इक्वल्स टू 6 K2 हमने कंसिडर कर लिया क्योंकि GCD 6 है तो 6 कॉमन आना चाहिए. अब A प्लस बी 90 है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 6 K1 प्लस 6 K2 इज इक्वल्स टू 90. तो दिस इम्प्लाइज K1 प्लस K2 इक्वल्स टू 15 आ जाएगा. तो ऐसे हम कितने K1 कॉमा K2 बना सकते हैं, K1 कॉमा K2. तो देखो पहला K1 कॉमा K2 बन सकता है 1 कॉमा 14, क्योंकि हमें सम 15 चाहिए, 1 प्लस 14 15 आ रहा है. दूसरा बना सकते हो 2 कॉमा क्या बना सकते हो यहाँ पर 13 प्लस 2 15. ओके, देन 3 कॉमा 12 एंड सिमिलरली क्या बना सकते हैं 4 कॉमा 11 है ना, 5 कॉमा 10 बना सकते हो एंड देन 6 कॉमा 9 7 कॉमा 8 15 बनेगा. अब यहाँ 1 कॉमा 14 है, 6 कॉमन है और भी कोई फिगर कॉमन नहीं है तो ये चल जाएगा. और इसका अपोजिट पेयर भी आप लेंगे 14 कॉमा 1, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर बोला है तो हम एंट्री चेंज कर सकते हैं. एक ऑर्डर्ड पेयर ये हुआ, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ये हुआ. 2 कॉमा 13 इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है तो दोनों में ओनली 6 कॉमन आएगा, ये भी चलेगा. इसको अपोजिट कर लें, रिवर्स कर लें 13 कॉमा 2, दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी. देखो 3 कॉमा 12 है तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है. तो इस 3 कॉमन को अगर बाहर करोगे, ऑलरेडी 6 कॉमन है पहले से ही, तो 6 इंटू 3 कितना है 18. तो इस केस में जो हमारे पास GCD आएगा GCD 6 से ज़्यादा आ जाएगा, 18 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में 3 कॉमन है, इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है. 4 कॉमा 11 इनमें भी कोई फिगर कॉमन नहीं है तो GCD 6 आ रहा है. 11 कॉमा 4 ये भी चल जाएगा. 5 कॉमा 10 फिर इसमें 5 कॉमन है. देखो तुम्हारे पास ऑलरेडी यहाँ पर क्या है 6 कॉमन है, तो 5 को कॉमन करो, 6 इंटू 5 30, GCD 30 आ जाएगा, इसलिए ये नहीं चलेगा क्योंकि हमें GCD 6 बोला है. 6 कॉमा 9 इसमें भी 3 कॉमन है
तो इसका GCD कितना बन जाएगा, यहाँ पर 6 × 3 18 आ जाएगा, ये भी नहीं चलेगा, 7,8 इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका रिवर्स पेयर आप ले सकते हैं 8,7। बात समझ में आ गई, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो 5,10 एक्सेप्टेबल नहीं हुआ क्योंकि 5 कॉमन है, 6 × 5 30 बन जाएगा, GCD 30, इसलिए रिजेक्ट कर दिया। 6,9 में 3 कॉमन है, तो 6 × 3 18 GCD आ जाएगा, GCD 6 चाहिए, रिजेक्ट हो गया। 7,8 पर कोई कॉमन नहीं है, ये आप एक्सेप्ट कर सकते हो, और इसका रिवर्स पेयर 8,7 एक्सेप्ट हो सकता है। तो ये टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास 8 ऐसे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जिसके लिए A+B 90 हो और GCD 6 हो, तो आंसर बनेगा चॉइस C। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 41 में डिस्कस कर रहा हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इज 2160 एंड देयर GCD इज 12। तो नंबर्स क्या होंगे? GCD समझ गया, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन। इसका रिजल्ट वही आएगा जो HCF का आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का आएगा, दोनों एक ही बात है। तो दो प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर 2160 है और उनके GCD 12 है, तो आप नंबर्स बताओ। तो तुम चॉइस से चेक कर लो, यहाँ पर फर्स्ट चॉइस 72 30 है, तो 72 × 30 आप करके देख लो, ये 2160 आ रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट 2160 आ रहा है, तो इसका GCD कितना आएगा ये चेक कर लेते हैं। तो 72 को हमने लिखा कितना, 36 × 2, और इसको 6 का स्क्वायर मतलब 2² × 3², और ये 2 है, तो ये 2³ × 3² हुआ 72। और इसके साथ जो पेयर है 30 को आप क्या लिखेंगे, 2 × 15, फिर मैंने इसको लिख दिया 5 × 3, 30 आ गया। तो इन दोनों का GCD कितना बना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन। तो देखो 2³ 2 आ गया, और 3² 3, 5 पर 1 5 पर 0 5 पर 0, तो 1 मतलब 6, तो GCD 6 आ रहा है। बट हमें तो GCD 12 चाहिए, तो इसलिए चॉइस से रॉन्ग है, चॉइस से आंसर नहीं बन पाएगा। चलो बी पर देखें, बी पर क्या 16 × 60, ये आ गया 960। ठीक है ना, लेकिन प्रोडक्ट तो 2160 चाहिए, तो यहाँ तो प्रोडक्ट ही 960 आ रहा है, ये रिजेक्ट हो गया। आप 96 × 25 करो, 96 × 25 आया था 2400, तो 2400 बट प्रोडक्ट हमारा 2160 आ रहा है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखो 3 चॉइस ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके हैं, तो आंसर तो डी ही आएगा, ये कन्फर्म है। अब हम लोग इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लें, तो 36 × 60 कर लें, ये 2160 आ रहा है। अब देखो 36 को आप क्या लिखते हो, इधर लिख देते हैं 36 × 60, ये आ गया 2160, प्रोडक्ट मैच कर रहा है। आंसर तो वैसे आ चुका है, बट मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पर। तो 36 को हम लिखते हैं 6² 2² × 3², और 60 को आप लिख दो यहाँ पर 6 × 10, तो ये 2 × 5 आ गया, 2² × 3 × 5 ये। तो इन दोनों का अगर HCF आप बात करें, HCF ऑफ 36 एंड 60 या GCD बोलें, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, तो ये हमारा कितना बन जाएगा यहाँ पर 2² 3² 3, 5 पर 1 5 पर 0 5 पर 0, तो ये बनता है 12। तो GCD 12 भी हमें चाहिए था, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर बन रहा है। वैसे ये ऑलरेडी हम लोगों ने पहले ही इसको आंसर फाइंड कर रखा था, क्योंकि 3 चॉइस रिजेक्ट हो चुके थे, सिंगल चॉइस है, तो आंसर डी आएगा एलिमिनेशन मेथड से। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। चलो 1-2 क्वेश्चन और देखें। ये देखो, ये 4th क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है NTC मटेरियल पर, जो क्लासरूम ऐप पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तुमने अटेम्प्ट किया होगा। तो चलो देखें इसे, उन बच्चों के लिए जिनसे सॉल्व नहीं हुआ होगा। द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ अ रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। ठीक है, हमें लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स चाहिए, और सीलिंग ऑफ ए रूम के लिए जिसकी डायमेंशन यहाँ पर दी हुई है, लेंथ एंड विड्थ दी हुई है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर लेंथ जो 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर है, तो इसको सेम यूनिट में कर लो, 15 मीटर 15 × 100 1500 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 1517 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यूनिट सेम कर लिया। अच्छा, यहाँ जो विड्थ दी हुई है वो 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है, तो फिर आप 9 मीटर को लिखो 900 सेंटीमीटर, और उसमें 2 सेंटीमीटर ऐड कर लेते हैं, 902 सेंटीमीटर। अब ये तो डायमेंशन हमने सेम यूनिट में ले लिया,
हमसे पूछा है लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स कितना होना चाहिए। तो देखो लीस्ट नंबर स्क्वायर टाइल्स तो तुम्हें तभी मिलेगा जब एक स्क्वायर टाइल्स हम मैक्सिमम डायमेंशन कर लेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम डायमेंशन का मतलब क्या हुआ कि वी शुड फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ these two numbers 1517 and 902. So actually we need to find HCF of 1517 and 902. बात समझ में आ रही है। तो तुमको नंबर थोड़े अजीब से लग रहे हैं तो तुम यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम वाले मेथड से यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। तो देखो 1517 हमने इसको लिखा 902 इंटू 1, तो इधर आ जाएगा 615। फिर इन दोनों में 902 615 फटाफट इसको लिख लेते हैं 902 615, ठीक है, इंटू 1 ये आ जाएगा 287। अब 615 287 ये आ गया 287, यहाँ तो इंटू 2 कर लेते हैं, ठीक है, ये प्लस 41, फिर 287 और 41 में ये आ जाएगा 41 इंटू 7 प्लस 0। तुम्हारा HCF कितना बना 41 बना 41। तो HCF आ गया HCF ऑफ 1517 902 इक्वल्स टू 41। मतलब हमें जो स्क्वायर टाइल्स लेना है वो 41/41 का लेना है। बात समझ में आ गई, 41/41 का लेना है। उसका डायमेंशन कैसे होने चाहिए स्क्वायर टाइल्स के 41/41 के। तो अगर हमसे पूछा है लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स तो तुम समझ सकते हो कि रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ सीलिंग, ओके, एंड अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ सीलिंग अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। तो एरिया ऑफ सीलिंग कितना हो गया 1517 इंटू 902 और एरिया ऑफ सीलिंग है 41 इंटू 41, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लो 41 से, यह आ जाएगा 37 और इसको सिंप्लीफाई कर लो, यह आ जाएगा 22, मतलब 37 इंटू 22 यह आ जाएगा 814 कितना बनेगा 37 इंटू 814। तो हमारे पास चॉइस डी यहाँ पर है, तो डी शुड बी करेक्ट आंसर है, डी करेक्ट आंसर बनता है, ओके। चलो एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, NDC मटेरियल पर। 4 watches are ringing alarm bells in the interval of 6, 12, 15 and 18 seconds. If they start at same time, how many times they will ring together in 4 hours? ठीक है ना। तो ये 4 watches हैं, ringing alarm bells कितने इंटरवल पर, तो 6 सेकेंड पर, 12 सेकेंड पर, 15 सेकेंड पर, 18 सेकेंड्स पर अलार्म बेल आ रही है। तो इफ़ दे स्टार्ट एट सेम टाइम, सपोज अभी सेम टाइम पर अलार्म आ गया, तो हाउ मेनी टाइम्स दे विल रिंग टुगेदर इन 4 hours। तो 4 hours में कितने टाइम्स ये ऑल 4 वॉचेस एक साथ रिंग करेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए तो हमें LCM चाहिए होगा 6, 12, 15 एंड 18 का। तुम देखो 6 को लिखोगे 2 इंटू 3 है ना, ये 12 आ गया, इसको 4 इंटू 3 और 15 को 5 इंटू 3 और 18 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 9, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर आ गया। तो इनका LCM कितना बन जाएगा, देखो 2 स्क्वायर एंड 2 तो 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर तो 3 स्क्वायर एंड 5, ओके। तो ये 4 इंटू 9 इंटू 5, तो ये आ गया कितना 180 सेकेंड्स में, ध्यान देना यूनिट सेकेंड्स में। और तुमसे पूछा है 4 hours में कितनी बार ये एक साथ रिंग करेंगे, तो 4 hours को आप सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, 4 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। तो रिक्वायर्ड times they will ring together इक्वल्स टू ऊपर 4 hours है उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया और नीचे 180 सेकेंड से डिवाइड कर दो, ये कुछ इस तरीके से कैंसिल होते हुए ये आ जाएगा 80। तो हमारा क्या आएगा 80 टाइम्स, तो 80 टाइम्स दे विल रिंग टुगेदर, ये आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर है 80, ओके। देख लेना मैंने यहाँ पर चॉइस नहीं लिखा है, चॉइस ए करेक्ट आंसर है, ए पर 80 लिखा होगा। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। चलो अब नेक्स्ट डे हम लोग इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है डिविजिबिलिटी, उस पर हम लोग डाउट डिस्कस कर लेंगे। और इसके थ्योरी, इसका जो कंसेप्ट पार्ट है वो ऑलरेडी मैंने क्लासरूम ऐप पर अपलोड कर रखा है,
उसको आप स्टडी करना, स्टडी किए भी होगे, और थोड़े बहुत क्वेश्चन जो तुमसे नहीं सॉल्व होंगे फर्स्ट अटैम्प्ट में उनको सेकेंड अटैम्प्ट आज ट्राई करना, फिर हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।